My name is Navi Chauhan. I belong to a hospitality industry. So my question is, as in our hospitality industry, they need good leadership and time management and confidence. And I think I am good in all these things. But sometimes I am lack in communication skills. So how can I able to improve my communication skills? Great. Navi, right? Yes. From hospitality industry. Thank you. Thank you. Sit down, please. I'm sure a lot of other students will also have concerns about improving their communication skills. 2 or 3 things. See, hospitality is a service industry, so communication becomes very, very important, right? Because you can solve guest issues, you can have so many issues which can be solved just by good communication, by proactive communication. So, but I'm sure even with students from engineering or business management, or regardless of what field you are from, or some of you might want to become politicians tomorrow, right? And then this is a very important skill. In fact, many studies have shown that other things being equal, all other things being equal, an individual's communication skills and their leadership skills, which are correlated, can distinguish, उससे फर्क पड़ता है कि वो व्यक्ति अपने लाइफ में क्या अचीव कर पाएगा. पहला मैं वहम ये दूर करना चाहता हूँ that communication, good communication does not mean knowing the English language. काफी लोगों के दिमाग में ये वहम है, मैंने इंग्लिश सीख ली तो मेरी कम्युनिकेशन ठीक हो गई. सॉरी, इंग्लिश एक भाषा है, कम्युनिकेशन एक कला है. 2 very different things. आप इंग्लिश सीखने के बावजूद भी आपकी कम्युनिकेशन पैथेटिक हो सकती है. तब जरूरत हो बोलने की, आप बोले ही ना, राइट? एंड आपको कोई भाषा भी अगर नहीं आती, गॉड फॉरबिड, आप मान लीजिए एक पर्सन जंगल में पैदा होकर वहां बड़ा हुआ, उसको कोई भी भाषा नहीं आती, उसको सिर्फ बॉडी लैंग्वेज आती है, राइट? पर्सन एज बॉडी लैंग्वेज विल, 2 लोगों को जंगल में डाल दें, पर्सन एज बॉडी लैंग्वेज विल बी डिफरेंट फ्रॉम पर्सन बीज. यस और नो? यू कैन ट्राई इट राइट नाउ. इफ यू हैव टू आस्क फॉर अ पेन फ्रॉम हर विदाउट यूजिंग वर्ड्स, go ahead. Now, Navi, can you do the same? I want you to catch this. You have to. So both of them are going to be different, right? And this can be misinterpreted. One of them, so if somebody really badly needs a pen, it'll be like, he can. But variation है कि नहीं? That's what I'm asking. Yes. So फिर से इस point पे वापस आता हूँ. Communication is an art that can be learned, that can be developed. English is a language that can be learned. Now here's the problem here's a mistake that most people make. They learn words from the dictionary and they try to insert it wherever it's possible. और खास करके अगर दूसरों को impress करना है, तो ऐसे heavy, भारी भरकम शब्द ढूंढ लाओ, right? और उनको दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बस वो डालते जाओ बीच में. दूसरा भी सोचेगा यार ये क्या वर्ड है, मेरी इसकी कम्युनिकेशन, इसकी इंग्लिश बहुत टॉप की. दिस इज अ मिसकंसेप्शन. आप पहले कला डेवलप करने पर सीखें, एंड आई विल सजेस्ट अपनी मदर टंग में पहले कम्युनिकेशन की कला सीखें. मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस टोनैलिटी, बीइंग प्रोएक्टिव, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, इनमें इंग्लिश होना जरूरी नहीं है. And side by side, if you want to improve your English, keep a journal, keep a small notebook in which you're putting down difficult words. Train your brain on multiple fronts. Increase your reading. Are you reading at the moment? Are you writing at the moment? Do you write on a daily basis? Not in the class, not notes. Do you write something? Right. So if you're not reading, if you're not writing, are you watching something? Are you watching other good communicators on YouTube or somewhere else? Are you? Yes. Are you listening to audios? So brain has so many ways to receive information. Use all of them. Right? Communication is an art, just like a muscle, it can be developed. But I don't know who said this, but there's a famous quote which says, communication works for those who work at it. Communication works for those who work at it. If you will work at communication, you will get better. If you will work to improve the art of conveying your ideas, इस कला को अगर आप इस पे काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, मैं आपको एक लॉ से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं जो न सिर्फ कम्युनिकेशन में, बट इन लाइफ एवरी फील्ड दिस लॉ इज एप्लीकेबल. It's called the law of paying the price. What's it called?
The law of paying the price. I don't know, it's coming from Jack Canfield or Brian Tracy, one of those two gentlemen. The law of paying the price, which simply stated means this: if you want something, you must pay the price. Nothing is free. अगर आपको जीवन में कोई चीज चाहिए, you want to wear a nice branded suit, you want to go to a nice holiday, you want to buy a nice camera, whatever, जो चीज जितनी उसकी क्वालिटी अच्छी चाहिए होगी, उतने पैसे देने ज्यादा पड़ेंगे, राइट? बट लाइफ की इंप्रूवमेंट में पैसों की बात नहीं कर। कुछ लोग सोचते हैं पैसों से मैं सब कुछ अचीव कर लूंगा। नॉट गोना हैपन। मैं मुंबई में कुछ दिन ठहरा तो वहां एक जिम में मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक दृश्य देखा कि शाम को एक बड़ा वीआईपी को पर्सन एक्सरसाइज करने के लिए आता था। खुद थोड़ा ओवरवेट था, पर उसके साथ 2 बॉडीगार्ड हुआ करते थे, वेरी वेल बिल्ड बॉडीगार्ड, 6 feet 2 inch विद अ पिस्टल एंड एवरीथिंग एंड फुल ड्रामा। वन अटेंडेंट उसका टॉवल पकड़ता था, प्रोटीन शेक पकड़ता था, एक अटेंडेंट पानी की बोतल पकड़ता था, ठीक है? बट ये सब कुछ नेचुरली किसी अमीर बाप का, बड़े प्रभावी किसी इन्फ्लुएंशियल बाप का बेटा होगा। बट ये सारा कुछ करने के बाद पुशअप्स उसे खुद ही लगाने पड़ते थे। It doesn't matter how rich or influential your father is, you cannot pay someone else to do your push-ups for you, right? So learn to do your own push-ups, which means communication को develop करने में efforts लगेंगी। Efforts के बिना में कोई ऐसी पूंजी, कोई ऐसी guide नहीं है, कोई shortcut नहीं है जिससे आप उसको achieve कर पाएं। It's gonna take efforts, it will take time, it will take hard work, but here's what you need. You need good role models. आपको किस पर्सन की तरह कम्युनिकेट करना सीखना चाहते हैं, राइट? लिसन टू न्यूज रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट, पीपल हु आर गुड, पॉलिटिशियंस हु आर गुड एट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। पॉलिटिशियन से ये नहीं मतलब कि सारे अपनी क्लास में स्पीच भाई और बहनों से शुरू कर दो, राइट? या मित्रों से शुरू कर दो, राइट? दिस डज नॉट मीन्स दैट यू सी हाउ अ पर्सन इज इन्फ्लुएंसिंग द क्राउड। उस कला को सीखें आप कि कोई व्यक्ति क्राउड को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है और मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूं। वो चीज पहले आती है, शब्द बाद में आते हैं। इनफैक्ट, I don't know, there's a Harvard study which says words are only 7% of the entire communication from one person to another. Body language is huge, visual is huge, auditory is huge, your body posture, your tone of your sound, and so many things, they're all combining together. So, अगर आप मन में ये सोच लें कि मुझे इस कला में इंप्रूव करना है क्योंकि इस कला का मुझे बहुत फायदा होने वाला है। बेटा अब देखिए, व्हेन यू गो इनटू द वर्क एनवायरनमेंट, यू विल हैव 100 डिफरेंट आइडियाज, बट इफ यू कैन नॉट एक्सप्रेस देम, व्हाट्स द पॉइंट? कोई और पर्सन आएगा, उसको एक्सप्रेस करना आता है, उसके आइडियाज सुने जाएंगे, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, वो आगे निकल जाएगा। फिर आप बोलेंगे इसका गुड लक अच्छा था, he's born lucky or something like that. No nonsense. He has developed a skill which you are slightly weak at and you can develop too. So इस mental block को remove करना है। Nobody is born a good communicator. You got to work at it, and you can. It's like a muscle को जितना जो है इस्तेमाल करेंगे उतना improve हो जाएगा। Raise your hand when you are feeling nervous. You're in a big auditorium. Some guest speaker has come in. मैंने किया है। अगर आपको उस समय एंड द टाइम कम्स एनी क्वेश्चंस, और एकदम जैसे वो कहते हैं ना, शांति हो जाती है पूरे हॉल में। उस समय लग रहा है मेरे माइंड में है भी, मैं पूछूं ना पूछूं, उस समय रेज योर हैंड। द फर्स्ट टाइम आई रेज माई हैंड, माई ब्रेन सैट डाउन, सो माई हैंड वेंट अप, माई ब्रेन गो शट डाउन मोड। ठीक है, वो क्वेश्चन ज्यादा भूल गया, बट स्टिल ढीठ बनो, अगली बार फिर से रेज योर हैंड। बाय द टाइम यू डू इट 3 or 4 or 5 times, आई थिंक another gentleman had a question. When I'm talking to people who are in positions of authority, हायर स्टेचर या पोजीशन ऑफ अथॉरिटी में, तो मैं अपने आसपास से लोगों से कम्युनिकेट कर लेता हूं, बट जब किसी सीनियर पर्सन से या किसी पर्सन ऑफ अथॉरिटी से कम्युनिकेट करना है तब मुझे मुश्किल आती है। तो इस मुश्किल को ओवरकम करने का एक ही तरीका है, टॉक टू मोर पीपल हु आर इन पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। द मोर यू विल गेट कंफर्टेबल, आपको भी लगेगा कि ये ऐसे दांत नहीं मारते हैं। ठीक है, ये भी इंसान है और ये भी बात सुनते हैं, अच्छा ये भी, he is a normal human being. The more you do it, the more comfortable you'll get, and that's the only way. There's no shortcut around it. The best way is to make yourself uncomfortable. अपने आप को उन situations में डालें जहां आप uncomfortable हो रहे हैं, and you will emerge victorious, right? But if you remain in your comfort zone, मुझे वही करना है जो हमेशा से करता आया हूं, तो क्या मिलेगा? हाँ जी, nothing नहीं, कुछ तो मिलेगा। मैं वही करूंगा जो हमेशा से करता आया हूं, जो क्या मिलेगा?
वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता है। पागलपन की एक परिभाषा यह है, हमेशा से जो किया है वही करते जाओ और रोज जाके शाम को भगवान से प्रार्थना करो, भगवान मेरी किस्मत बदल दो। ऐसे नहीं होता। किसी कवि ने खूब ही लिखा है, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, खुदा ने उस शख्स के हालात कभी नहीं बदले, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का, ना हो जिसे ख्याल खुद अपने हालात बदलने का। आज आप आज सोच लें कि मुझे अपने हालात कैसे बदलने हैं इन टर्म्स ऑफ इंप्रूविंग माय कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे 6 महीने बाद मिलें विद योर एफर्ट्स, लेट्स सी वेयर द रिजल्ट्स आर। और एफर्ट्स के बिना कुछ नहीं होने वाला। थैंक यू।